Namaste. I am Dr. R.N. Verma, former scientist of Bhabha Atomic Research Center. During my tenure in Bhabha Atomic, I worked on cancer, uterus cancer for more than 18 years, which is scientifically called cancer of cervix. 2 years on coronary heart block or artery blocking. And after my retirement, way back in 2002, I have been pursuing homeopathy, especially in the field of arthritis. I specialized in the field of arthritis, be it osteoarthritis, rheumatoid arthritis, or gout. More than 25 crore people are suffering in India due to arthritis. Arthritis is a disease which should come only after the age of 60, that is old age disease. And reason being that there are degenerative processes occurring in our body, and it is the result of degenerative process. But of late it is seen that even youngsters are involved, and these youngsters are suffering from arthritis mainly because of their wrong food habits and wrong lifestyle. Solution for such a grave problem is surgery, but surgery is not a guarantee that person then after will lead a normal life. आर्थराइटिस बीमारी यदि हम आयुर्वेद के एंगल से देखें तो मालूम पड़ता है कि भाई ये वात रोग है, और हम एलोपैथी के एंगल से या मॉडर्न साइंस के एंगल से देखें तो मालूम पड़ता है इट इज़ आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम इन द बोन और ड्यू टू लॉस ऑफ कार्टिलेज बिटवीन द टू बोन्स इन द जॉइंट. आर्थराइटिस की बीमारी मेनली होती है खाना पानी के नियमों का उल्लंघन. ये आपको मामूली बात लगेगी, लेकिन पेट में भोजन गया और आपने पानी पी लिया 90 मिनट के अंदर, तो वो भोजन सड़ेगा और उसका एक केमिकल बनेगा ट्राइग्लिसराइड से होते हुए यूरिक एसिड एंड सो ऑन, फाइनली आर्थराइटिस. सो पहला वे लोग जो भोजन के 90 मिनट्स के अंदर पानी पी लेते हैं. दूसरी कैटेगरी वो कि जो मस्तिष्क में सदा तनाव रखते हैं या सदा तनाव में रहते हैं और डर में रहते हैं. और तीसरा जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है कि बहुत देर तक खड़े रहना, बहुत देर तक चलना फिरना, एथलीट्स इत्यादि, वो कैटेगरी आप समझ सकते हैं, उन लोग को आर्थराइटिस होता है. This was simply because after knowing that more than 25 crore people in India are suffering from this disease and there is no better solution available at present. So I concentrated my research and provided a solution. Meantime, I happened to come across Chairman Madhusudan Group, Shri Krishna Gopal Mundra ji, and he expressed that his arthritis should be cured by me. So I took up the challenge and cured his arthritis way back in 2013. Seeing this, Shri Krishna Gopal Mundra Sahab offered an opportunity to me that he pointed out first of all defects, that your oil I have to use separately, your medicines I have to use separately, and it is difficult to remember that 3 times every medicine and oil has to be applied. Why don't you club both these things under the concept of single window concept? So इसे कैसे हल किया जाए, दोनों कैसे अचीव करें. तो हमने एक व्हीकल ली जो है तेल, एंड उसके अंदर देशी औषधें ली, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेथी सौंठ वगैरह ये दिया है आपको बॉटल में. एंड देन this was to take care of what, and we further fortified with medicines which will help regenerate the cartilage. When we clubbed all these things in a single oil and when we applied on the patients, we found startling results that people get cured. In addition, we have to take orally calcium, so calcium will supplement the loss of calcium in the bones and thereby cure osteoarthritis, and fortified medicines will take care of cartilage, which will help regenerate cartilage. Together it is giving excellent results so far. Then for 7 to 8 years we conducted research in Madhusudan Healthcare Group,
and after conducting the research and after subjecting the product to the outsiders, I mean field trials, and after confirming the results, then we name the product, which is called NeeSol Magic Oil. And this product has been found to be very effective, especially to 85% of the people who develop arthritis in the initial stages. इस आर्थराइटिस में समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो यदि आप सर्जरी नहीं चाहते तो आपको NeeSol लगाना पड़ेगा। NeeSol के साथ साथ आपको चूने का सप्लीमेंट्री कैल्शियम खाना पड़ेगा। ये दो यदि आप खा लेते हैं तो मोर देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस वो इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। NeeSol ऑयल की आवश्यकता किसको पड़ेगी? वे लोग जो भोजन करते हैं और भोजन के 90 मिनट के अंदर पानी पी लेते हैं, जिससे उनका भोजन सड़ता है, यूरिक एसिड बनता है, इस तरह 101 केमिकल जिनमें आर्थराइटिस डेवलपिंग केमिकल्स भी होते हैं वो बन जाते हैं। तो पहली कैटेगरी वो है। दूसरे वे लोग जो सदा तनावग्रस्त रहते हैं, तनाव के साथ एसोसिएटेड डर भी रहता है। और तीसरी वो कैटेगरी जिनको एक्सेसिव वॉकिंग, एक्सेसिव स्टैंडिंग या बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा दौड़ना, एथलीट्स, एयर होस्टेसेस जो बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, इन सबों को NeeSol ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। NeeSol ऑयल आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है? तो NeeSol ऑयल को आप रीढ़ की हड्डी पर लगाइए, पूरा हो सके तो थोड़ा सा गर्दन पर भी। उसके बाद घुटने में 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे ऑल अराउंड, और टखने के नीचे पूरा पैर, पंजा, उंगलियां, अंगूठे वगैरह। ये NeeSol ऑयल लगाइए। यहाँ सावधानी ये रखें कि यदि आपने मालिश किया तो आपका दर्द बढ़ जाएगा और घुटना आर्थराइटिस से ठीक भी नहीं होगा। तो इसे जेंटली लगा के छोड़ देना है। ये रात में सोते वक्त, सोने के पहले, सवेरे उठने के बाद, स्नान के बाद, और जब भी आपका पैर दर्द करे, जोड़ दर्द करे, ये NeeSol को लगा देना है। NeeSol ऑयल जहाँ भी दर्द हो, हड्डी का, मस्कुलर या इन्फ्लेम्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी, वहाँ पे ये लगाएं। ये बिल्कुल आराम देगा, ठीक भी करेगा। और इसे वही है कि आपको दिन में 2-3 बार लगाना पड़ेगा। इन ब्रीफ, एनी गिवन टाइम देयर शुड बी ए थिन लेयर ऑफ NeeSol ऑयल ऑन द अफेक्टेड पार्ट। NeeSol ऑयल का एप्लीकेशन बिना मालिश के वो तो अपना जादू करता ही है। वो आपके आर्थराइटिस के डिजीज़ को ठीक करेगा ही करेगा। लेकिन यदि आपने इस ऑयल के अलावा करेक्टिंग एक्सरसाइजेस जो स्पाइन को करेक्ट करती, जो घुटने के अलाइनमेंट को करेक्ट करती, वो यदि ऐड कर दी जाए तो हीलिंग प्रोसेस विल गेट एक्सीलरेटेड एंड हीलिंग टाइम विल गेट रिड्यूस्ड। तो आइए देखते हैं वे कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हमारे को परमानेंटली ठीक करती हैं। जोड़ों के दर्द से प्रभावित व्यक्ति आयुर्वेदिक NeeSol ऑयल को शरीर के किस भाग पर, कितना व कैसे लगाएं? कान के पीछे। एक उंगली पर तेल लेकर कान के पीछे यानी कान के निचले वाले भाग के गड्ढे पर लगाना है। आयुर्वेद में इस स्थान को वात दोष का एक प्रवेश द्वार माना गया है। वह जोड़ों का दर्द वात दोष से उत्पन्न होता है। गर्दन पर तेल को हाथ में लेकर उसे गर्दन पर हल्के से मल दें, जोर लगाकर बिल्कुल ना घिसे। रीढ़ की हड्डी पर गर्दन के नीचे से लेकर रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले कशेरू तक
तेल को केवल लगाना है, मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। घुटने पर, विशेषतः उनके लिए जिनको घुटने के जोड़ों का दर्द है, वे घुटने के 2 इंच ऊपर व 2 इंच नीचे तक घुटने के चारों ओर तेल को पर्याप्त मात्रा में लगाएं। मालिश नहीं करनी है, अन्यथा जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। औषधि युक्त होने के कारण यह नीसॉल तेल बिना मालिश के भी सतह से अंदर जाकर जोड़ों तक पहुंचता है व जोड़ों को आराम देता है। एड़ी के ऊपरी भाग पर यहां से मेरिडियंस जाती हैं, इसलिए इस स्थान पर तेल लगाना है व हल्के हाथों से मालिश भी कर सकते हैं। अंत में दोनों पैरों के तलवे, अंगूठों व सारी उंगलियों पर तेल लगाना है। प्रेपरेटरी एक्सरसाइज। तेल लगाने की प्रक्रिया के बाद जोड़ों के दर्द से प्रभावित व्यक्ति शारीरिक क्षमता के अनुरूप 3 प्रकार से मेन एक्सरसाइज कर सकता है: खड़े रहकर, बैठकर, लेटकर। लेकिन मेन एक्सरसाइज करने के पहले नीचे दी गई प्रेपरेटरी एक्सरसाइज करना तीनों के लिए मैंडेटरी अर्थात आवश्यक है। सर्वप्रथम जोड़ों के दर्द से प्रभावित व्यक्ति पीठ के बल लेट जाएं। कोई सहायक व्यक्ति जोड़ों के दर्द से प्रभावित व्यक्ति के दोनों पैरों की सारी उंगलियों को व अंगूठों को एक एक करके एक बार क्लॉकवाइज व एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। इससे उंगलियों का तनाव दूर होगा। एक पैर के अंगूठे को पकड़कर पैर को 6 इंच तक ऊपर उठाएं व हल्का सा झटका देकर पैर स्थान पर रख दें। यह प्रक्रिया एक एक करके दोनों पैरों की सारी उंगलियों व अंगूठों पर दोहरा दें। प्रभावित व्यक्ति सहायक के द्वारा पैर उठाते समय अपनी ओर से कोई ताकत न लगाएं, अर्थात अपना योगदान न दें। अब प्रभावित व्यक्ति स्वयं बिना किसी सहायक के अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में सटा दे। फिर दोनों सटे हुए पैरों को एक साथ पहले जमीन की ओर, फिर अपने मुख की ओर, फिर दाईं और बाईं ओर जितना हो सके उतना ले जाएं। इस व्यायाम को करते समय प्रभावित व्यक्ति अपने घुटनों को ऊपर उठने अथवा मुड़ने ना दें। सहायक जोड़ों के दर्द से प्रभावित व्यक्ति के
किसी एक पैर की एड़ी को अपनी एक हथेली पर रखकर जमीन से 6 इंच तक ऊपर उठाएं व दूसरे हाथ से पैर को पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज जितना हो सके मोड़ते जाएं। लेकिन जैसे ही प्रभावित व्यक्ति को दर्द होने लगे, प्रक्रिया को तुरंत बंद कर दें। इस व्यायाम को करते समय प्रभावित व्यक्ति का पैर सीधा रहे व घुटने मुड़ने ना पाएं। घुटने के दर्द से प्रभावित व्यक्ति जिनको घुटने मोड़ने में कठिनाई अथवा दर्द होता है, वह एड़ी को बिस्तर से सटाकर रखते हुए एक एक करके अपने घुटने जितना हो सके उतना मोड़े व एड़ी को अपने कूल्हे से सटाने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि घुटना मोड़ते समय पैर बिस्तर से सटे रहें, ऊपर ना उठने पाएं। इस प्रक्रिया में आप किसी की सहायता ले सकते हैं। लेटकर भी मेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। शवासन की मुद्रा में लिटाकर यदि प्रभावित व्यक्ति से ये कहा जाए कि उसके दोनों कूल्हे पर इंजेक्शन दिया जाएगा, तो वह स्वभावतः तुरंत अपने दोनों कूल्हों को आपस में सटा देगा। वह मानसिक जोर लगाकर कूल्हों को टाइट कर देगा। बस इतने भर से ही प्रभावित व्यक्ति के घुटनों के जोड़ों के दर्द कालांतर में ठीक हो जाएंगे। खड़े रहकर करने वाली मेन एक्सरसाइजेस। व्यायाम करते समय सांस को प्राकृतिक रूप से चलने दें। सांसों को ना तो बलपूर्वक रोकें और ना ही बलपूर्वक लें। पेट को तनाव मुक्त रखें। उसे रोकना या दबाना नहीं है। कोई भी व्यायाम तेजी से या झटका देकर ना करें। 24 घंटों में केवल एक ही बार व्यायाम करना है, दोहराना नहीं है। हर एक व्यायाम बेहद धीरे और शांतिपूर्वक करना है। हर व्यायाम को पूरा करने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगाना चाहिए। सबसे पहले खड़े रहकर करने वाली पहली मेन एक्सरसाइज, कमर को दाएं बाएं झुकाना, साइड लीनिंग। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का अंतर रखकर खड़े हो जाएं। अपने दाएं हाथ को आकाश की ओर उठाएं व बाएं हाथ को बाईं जांघ से सटा दें। अब बहुत ही धीरे धीरे कमर को बाईं ओर जितना हो सके उतना झुकाते जाएं व साथ साथ जांघ से सटी हुई हथेली को नीचे की ओर सरकाते जाएं। अब यही प्रक्रिया बाएं हाथ को लेकर दोहराएं। हर प्रक्रिया को 1 से 1.5 मिनट का समय आवश्यक है। खड़े रहकर करने वाली दूसरी मेन एक्सरसाइज, कमर को आगे पीछे की ओर मोड़ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाएं। हथेलियां सामने की ओर, ठोड़ी और छाती के बीच 4 उंगल का अंतर रखते हुए कमर को पीछे की ओर झुकाते जाएं।
जब तक रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले कशेरू पर दबाव ना पड़े। सावधानी के लिए किसी व्यक्ति को पीछे खड़ा रखें। पुनः पहली स्थिति में आ जाएं। वह कमर को आगे की ओर बहुत ही धीरे धीरे झुकाते हुए हथेलियों से फर्श को छूने का प्रयास करें। खड़े रहकर करने वाली तीसरी मेन एक्सरसाइज, स्पाइनल ट्विस्टिंग। अपने दोनों हाथों को जिस प्रकार पक्षी अपने पंख फैलाते हैं उसी प्रकार फैलाएं। हथेलियां धरती की ओर, गर्दन को बाईं ओर करें व दृष्टि बाएं हाथ के किसी एक उंगली पर केंद्रित रखते हुए शरीर को धीरे धीरे बाईं ओर मोड़ते जाएं। पुनः पहली स्थिति में आ जाएं। वह अपने दोनों हाथों को फैलाकर गर्दन इस बार दाईं ओर करके शरीर धीरे धीरे दाहिनी ओर मोड़ते जाएं। केवल घुटने के जोड़ों के दर्द वालों के लिए विशेष व्यायाम। दीवार की ओर मुख करके दोनों पैरों के बीच 1 फुट का अंतर रखते हुए दीवार से 1 फुट दूर खड़े हो जाएं। दोनों हथेलियां दीवार पर कंधे के लेवल में सटा दें। दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं। परिणाम स्वरूप पिंडलियां व घुटने के ऊपर के भाग कड़े हो जाएंगे और इसी स्थिति में बने रहकर अपने जननांग को आगे दीवार पर सटाएं। परिणाम स्वरूप कूल्हे कड़े हो जाएंगे। अपने कूल्हों को मानसिक रूप से भी कड़े कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप दीवार की ओर मुंह करके दोनों पैरों के बीच 1 फुट का अंतर रखते हुए दीवार से 1 फुट दूर खड़े हो जाएं। दोनों हथेलियां दीवार पर कंधे के लेवल में सटा दें। दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं व कल्पना करें कि आपके दोनों कूल्हों को एक साथ इंजेक्शन दिया जाएगा तो भय के कारण आपके दोनों कूल्हे आपस में सट जाएंगे। ऐसे समय यदि आप थोड़ा सा मानसिक रूप से कूल्हे कड़े करने के लिए जोर लगा देंगे तो परिणाम स्वरूप आपके कूल्हे कड़े हो जाएंगे। इस व्यायाम को 1 मिनट के ऊपर ना करें व दिन में केवल 1 बार ही करें। बैठकर भी मेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि प्रभावित व्यक्ति खड़े रहकर व्यायाम करने में असमर्थ है तो वे निम्न प्रकार से बैठकर व्यायाम करें। व्यायाम करते समय सांस को प्राकृतिक रूप से चलने दें। सांसों को ना तो बलपूर्वक रोकें और ना ही बलपूर्वक लें। पेट को तनाव मुक्त रखें। उसे रोकना या दबाना नहीं है। कोई भी व्यायाम तेजी से या झटका देकर ना करें। 24 घंटों में केवल एक ही बार व्यायाम करना है, दोहराना नहीं है। हर एक व्यायाम बेहद धीरे और शांतिपूर्वक करना है। हर व्यायाम को पूरा करने में
1 से 1.5 मिनट का समय लगाना चाहिए। बैठकर करने वाली पहली मेन एक्सरसाइज, कमर को दाएं बाएं झुकाना, साइड लीनिंग। अपने दाएं हाथ को आकाश की ओर उठाएं व बहुत ही धीरे धीरे कमर को बाईं ओर जितना हो सके उतना झुकाते जाएं। यही प्रक्रिया बाएं हाथ को लेकर दोहराएं। हर प्रक्रिया को 1 से 1.5 मिनट तक का समय लगना आवश्यक है। बैठकर करने वाली दूसरी मेन एक्सरसाइज, कमर को आगे पीछे की ओर मोड़ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाएं, हथेलियां सामने की ओर, ठोड़ी और छाती के बीच 4 उंगल का अंतर रखते हुए कमर को पीछे की ओर झुकाते जाएं, जब तक रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले कशेरू पर दबाव ना पड़े। सावधानी के लिए किसी व्यक्ति को पीछे बैठाकर रखें। पुनः पहली स्थिति में आ जाएं व कमर को आगे की ओर बहुत ही धीरे धीरे झुकाते हुए हथेलियों से फर्श को छूने का प्रयास करें। बैठकर करने वाली तीसरी मेन एक्सरसाइज, स्पाइनल ट्विस्टिंग। अपने दोनों हाथों को जिस प्रकार पक्षी अपने पंख फैलाते हैं उसी प्रकार फैलाएं। हथेलियां धरती की ओर, गर्दन को बाईं ओर करें व दृष्टि बाएं हाथ के किसी एक उंगली पर केंद्रित रखते हुए शरीर को धीरे धीरे बाईं ओर मोड़ते जाएं। पुनः पहली स्थिति में आ जाएं व अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस बार गर्दन दाईं ओर करके दृष्टि दाएं हाथ की किसी एक उंगली पर केंद्रित रखते हुए शरीर को धीरे धीरे दाहिनी ओर मोड़ते जाएं।